So we are discussing questions based on the previous year JEE exam questions. We are taking a question from year 2003 exam. Find the equation of plane passing through the points. Find the equation of plane passing through the points 210, 501 and 411. देखिए फास्ट पेस पे हम डिस्कस करेंगे. वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑलरेडी जो कंसेप्ट्स आप डिस्कस कर चुके हैं. दो सवाल थे इसमें. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 210, 501, 411. And the second question is about P is the point 216 and Q is the point such that PQ is perpendicular to the plane. जो कि आप इस प्लेन की बात कर रहे हैं जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है. And the midpoint of PQ lies on it. एक बात तो है कि जो सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे वो तभी ठीक कर पाएंगे जबकि आप फर्स्ट से रिजल्ट ठीक लेके आ पाएंगे. 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड इफ यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ प्लेन. बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है. 3 points are given and you have to find out the equation of plane. In the year 2003 it was asked. In fact, from 2003 onwards 3-dimensional geometry was added in the syllabus. So equation of plane passing through the point x1, y1, z1 is directly written as a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equals to 0. So it is a into x minus 2 plus b into y minus 1 plus c into z minus 0 is equals to 0. That is the equation of plane. 501 is also on the same plane. 5, 0, 1 is also on the same plane. So 501 भी satisfy करेगा. 5 minus 2 that is 3a minus b plus c is equals to 0. 5, 0, 1. 4, 1, is also on that plane. 411 भी आपने satisfy किया. That will become 2a plus 0 into b plus c equals to 0. ठीक. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें या डायरेक्टली सॉल्व कर लें, जैसा आपको उचित लगता है. ठीक है. यहाँ डायरेक्टली भी बना पाएंगे. c विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a एंड c की वैल्यू माइनस 2a रखने पर c equals to minus 2a, 3a minus 2a, that will be a minus b is equals to 0. You are getting a equals to b, right? ठीक. Or you can say a by 1 equals to b by 1 is equals to c by minus 2. You are getting the direction ratios of normal to the plane. और 1, 1 minus 2 को आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन में रख दिया. That will become 1 into x minus 2 plus 1 into y minus 2 plus minus 2 times z minus 0 is equals to 0. ठीक है. You will be getting the equation of plane and that plane is coming as x plus y minus 2z minus 2 minus 2 minus 4, right, equals to 4. That is the equation of plane. ये plane की equation. In fact कोई minus 2, what is that? कहाँ पे चेंज है? 1 into x minus 2 plus 1 into y minus 1. Oh sorry, ये this is y minus 1. So it will become x plus y minus 2z is equals to minus 2 minus 1 minus 3. Here it will become 3. ये तो हो गया एक पार्ट क्वेश्चन का कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, और वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था. 3 points are known to you. Equation of plane passing through these 3 points. Now the next question is P is the point 2, 1, 6. ठीक है. P point at 2, 1, 6 and the point Q is such that PQ is perpendicular to the plane in the first. That is the PQ is perpendicular to the plane in first. That is the equation of plane जो आपने derive करी है. And midpoint of PQ lies on it. ठीक है ना. आपको Q फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा. बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम. ये इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आपने डिराइव किया, ठीक है. P pointed 2, 1, 6. Let's say that is the point P 2, 1, 6.
पॉइंट Q इज सच दैट PQ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, PQ जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ PQ लाइज ऑन इट, मतलब PQ का मिड पॉइंट प्लेन के ऊपर होगा. लेट्स से दैट मिड पॉइंट इज R. PQ का जो मिडिल पॉइंट है वो है R. ठीक, और Q पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है. बहुत सिंपल सी बात है यार. Q पॉइंट इज नथिंग बट द इमेज. Q point is nothing but the image of that point about this plane, and you are aware of the basic approach as well as shortcut approach to find out the image or foot of perpendicular of a point about the plane. Comfortable हैं आप? ठीक है ना. बेसिक अप्रोच भी आपके नॉलेज में, एज वेल एज शॉर्टकट अप्रोच भी आपके नॉलेज में. ठीक है, सवाल बन जाता है. 4 मार्क्स या 5 मार्क्स की कैटेगरी में सवाल था. 2 क्वेश्चंस थे. पहले में प्लेन की इक्वेशन और प्लेन सेकंड में उस प्लेन के अबाउट इमेज फाइंड आउट करना थी. इमेज नहीं टर्म यूज किया उसने. P इज द पॉइंट 216, पॉइंट Q इज सच दैट PQ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन फर्स्ट एंड मिड पॉइंट ऑफ PQ लाइज ऑन इट. तो आप तुरंत समझ गए कि यार वो इमेज की बात कर रहे हैं. ठीक है. प्रीवियस ईयर जेई की सीक्वेंस में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन 2x माइनस y प्लस z माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 5, और ये कहा गया है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 by root 6 from 2 1 minus 1. ठीक. So equation of plane containing the line, क्या मतलब समझते हो? इनफैक्ट इट इज नथिंग बट द, भाई दो प्लेन्स, एक ये 2 प्लेन्स की इक्वेशन है और 2 प्लेन्स की इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं. जनरल फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो जनरल फॉर्म में 2 प्लेन की इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है. So equation of plane containing the line of intersection of the 2 planes, यही तो मतलब हुआ. The equation of plane containing the line of intersection of the 2 planes is clearly given by P1 plus lambda P2 equals to 0. तो P1 plus lambda P2 equals to 0. ये तुरंत समझ लेंगे आप कि यार फैमिली ऑफ प्लेन्स के बारे में बात कर रहा है. 2x माइनस y प्लस z माइनस 3 प्लस लेमडा टाइम्स 3x प्लस y प्लस z माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0. उसने कहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इज रिक्वायर्ड एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 बाय रूट 6 फ्रॉम द पॉइंट 2, 1, माइनस 1. क्या समझे आप? 2, 1, माइनस 1 से प्लेन की जो डिस्टेंस है वो 1 बाय रूट 6 है. पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी टेकन एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो 2, 1, से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस प्लेन इज इक्वल टू 1 बाय रूट 6. सीधा सा कंक्लूड करोगे आप. तो पहले इसको अरेंज कर लिया जाए. 2 प्लस 3 लेमडा टाइम्स x प्लस माइनस 1 प्लस लेमडा y प्लस 1 प्लस लेमडा z माइनस 3 माइनस 5 लेमडा is equals to 0. That is the equation of plane. 1 by root 6 distance पर from the point 2, 1, minus 1. तो length of perpendicular डायरेक्ट लिखता हूं मैं. Length of perpendicular from the point 2, 1, minus 1 to this plane is equals to 1 by root 6. So find 2 plus 3 lambda into 2 plus minus 1 plus lambda into 1 plus 1 plus lambda into minus 1 plus minus 3 minus 5 lambda. Modulus of that, do not forget about this modulus sign दोस्तों. ax1 plus by1 plus cz1 plus d magnitude of that upon root over a square plus b square plus c square. और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके बराबर है? दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 बाय रूट 6. ठीक है.
कैलकुलेट करेंगे आप इसे, ये जरूर ध्यान रखिएगा, स्क्वायरिंग करना होगी, डेफिनेटली करना होगी आपको, स्क्वायरिंग करना होगी। एंड डू टेक केयर ऑफ मैग्नीट्यूड को मत भूलिएगा, क्योंकि मॉडुलस साइन जब आप रिमूव करोगे प्लस माइनस साइन वुड बी देयर, तो लेमडा की दो वैल्यूज मिलेंगी, है ना। जब आप ये मॉडुलस साइन रिमूव करेंगे तो प्लस माइनस साइन वुड बी देयर, सो यू विल बी गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ लेमडा, एंड करस्पॉन्डिंग टू टू वैल्यूज ऑफ लेमडा यू विल बी गेटिंग टू इक्वेशंस ऑफ प्लेन। कर लेंगे, अभी तो हो जाएगा, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। या इनफैक्ट मैग्नीट्यूड के लिए आप प्लस माइनस साइन भी आएगा, लेकिन अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तब तो कोई अंतर नहीं आने वाला, स्क्वायरिंग आपको करना होगी क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स हैं, ठीक है। बट यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ लेमडा, इफ यू ऑब्जर्व हियर यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ लेमडा, तो लेमडा की दो वैल्यूज तो आना ही है, किसी भी तरीके से देख लो, और लेमडा की दो वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यू विल बी गेटिंग टू इक्वेशंस ऑफ प्लेन। सिंपल सा कंसेप्ट है, अब कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, अब इतने लेवल पे ये तो रिक्वायर्ड है, लेकिन इतना आप समझ में आ गया। इक्वेशन ऑफ लैंग्वेज, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, लाइन क्या होती है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स P1 plus lambda P2 equals to 0 and at a distance of 1/√6 from the point, तो पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। हाँ बट कैलकुलेशन आपके लिए, so when you are solving that on squaring, this modulus sign तो रिमूव हो जाएगा बिकॉज आप स्क्वायर कर रहे हैं, you are going to get a quadratic in terms of lambda, lambda की टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन रही है। कैन यू टेल मी द वैल्यू, कैन यू टेल मी द क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ lambda, lambda के टर्म्स में क्या क्वाड्रेटिक बनी बताएंगे आप मुझे? so yes, कोई भी एक, हाँ बताइए, चलिए थोड़ा तेज। 11 lambda स्क्वायर plus 12 lambda plus 6 equals to 0. All of you are getting this? 11 lambda square plus 12 lambda plus 6 equals to 0. Same. So, two values lambda. नहीं, मैंने कहा था, अच्छा केवल इतना नहीं, मैंने पूरा सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया उसकी बात कर रहा था। हाँ 5 lambda स्क्वायर, ओके फाइन, 5 lambda स्क्वायर प्लस 24 lambda इक्वल्स टू 0, ये कंप्लीट सॉल्व करने के बाद में जो क्वाड्रेटिक बन रही है, तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ lambda, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ lambda इज कमिंग एज 0 एंड अदर वैल्यू ऑफ lambda इज कमिंग एज -24/5। तो ये lambda की दो वैल्यूज हैं और इन दो वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यू विल बी गेटिंग टू इक्वेशन ऑफ प्लेन। और एक मजेदार बात यहाँ पर ये होने वाली है कि जब lambda की वैल्यू 0, सुनना इस बात को ध्यान से, lambda की दो वैल्यूज आनी है, दो आनी है, 0 और -24/5, तो दो प्लेन्स मिलेंगे। अब lambda की वैल्यू 0 रखने पर यू आर गेटिंग द 2x - y + z - 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज द प्लेन। तो ठीक है, क्या दिक्कत है? एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/√6 फ्रॉम द पॉइंट 2, 1, -1, वन ऑफ द प्लेन इज देयर, यही तो प्लेन सेटिस्फाई कर जा रहा है उसको। lambda की वैल्यू 0 के लिए यू आर गेटिंग द सेम प्लेन, और lambda की वैल्यू -24/5 के लिए यू विल बी गेटिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन मस्ट है। In the year 2010, 4 questions are asked from the 3D topic itself. If the distance of the point P point 1, -2, 1 from the plane x plus 2y minus 2z equals to alpha, distance of the point P point 1, -2, 1 from plane x plus 2y minus 2z is equals to alpha, where alpha is positive, जहां alpha positive है, is 5. Then foot of perpendicular from point P to the plane. देखो प्लेन के ऊपर foot of perpendicular फाइंड आउट करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू आर अवेयर ऑफ द शॉर्टकट एज वेल एज यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक अप्रोच ऑल्सो। पहले उसके लिए आवश्यक होगा प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करना, और उसमें कहाँ दिक्कत है यार, पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस को 5 गिवन है, तो ठीक है, पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस अगर 5 गिवन है, दैट मींस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज बीन गिवन एज 5, ये मतलब हुआ। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1, -2, 1 ऑन द प्लेन इज इक्वल्स टू 5। वी आर गोइंग टू राइट 1 - 4 - 2
minus of alpha upon root over 1 plus 4 plus 4 and that is given as alpha. बड़ा सिंपल सा सवाल है यार भाई. लेंथ ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज 5. तो पॉइंट की डिस्टेंस प्लेन से 5 है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5. अल्फा की डेफिनेटली मैग्नीट्यूड जब आप रिमूव करोगे 9 का स्क्वायर रूट 3 इट विल बिकम -6 प्लस 1 -5 माइनस अल्फा and modulus of that will be equals to 15. -5 minus alpha is equals to plus minus 15. ठीक है, अल्फा की दो वैल्यूज मिल जाएंगी आपको. कैन यू टेल मी द वैल्यूज ऑफ अल्फा? वैल्यूज ऑफ अल्फा +15 लेने पर यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 10 है ना, और -15 लेने पर -20 पक्का. लेकिन साफ साफ कहा गया सवाल में आपको कि अल्फा पॉजिटिव है. अल्फा पॉजिटिव है मतलब ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x + 2y - 2z इज इक्वल टू 10. दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट. और आपसे कहा गया है भैया फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताइए फ्रॉम पॉइंट P ऑन द प्लेन. यार बहुत कंफर्टेबल है हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज में. वी आर अवेयर ऑफ द शॉर्टकट. x2 minus x1 upon a equals to y2 minus y1 upon b equals to z2 minus z1 upon c equals to minus of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square plus c square. और इमेज के केस में माइनस ऑफ ट्वाइस. अच्छा, व्हाट अबाउट द बेसिक अप्रोच? बेसिक अप्रोच क्या, चलिए बताएं आप. बेसिक अप्रोच की अगर मैं बात करूंगा तो ये प्लेन की इक्वेशन, क्योंकि मैं चाहूंगा आपको बिल्कुल कंसेप्ट बहुत ठीक ढंग से ध्यान हो. P.1, 2, -1 या 1 - 2 1, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेट्स से Q. तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ PQ. चलिए बता देते हैं इक्वेशन ऑफ PQ. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2, 1. प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1, 2, -2, राइट. एंड PQ इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन. 1, 2, -2, 1, 2, -2. That's nothing but equation of PQ. Take a general point on the on that line. लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट कंसिडर किया इन टर्म्स ऑफ R. क्या करेंगे आप, सेटिस्फाई कर देंगे ऑन प्लेन. यू विल बी गेटिंग द value of R, you will be getting the point. Clear है ना? R + 1, 2R - 2, -2R + 1. प्लेन में सेटिस्फाई कीजिएगा, you will be getting the value of R, and if you will be getting the value of R, you will be getting the foot of perpendicular. ये बेसिक अप्रोच कहाँ लोड है, ठीक. Again from a previous year 2010 exam question. Interesting है. Equation of plane, an equation of plane containing the straight line, equation of plane containing the straight line x/2 equal to y/3 equal to z/4. So equation of plane containing this straight line and perpendicular to the plane. और वो प्लेन कैसा है, वो प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन. कैसा प्लेन, कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइंस. क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया गया बस. ये इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, कंटेनिंग दिस स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इज कंटेनिंग दिस टू लाइंस. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस. प्लेन की इक्वेशन जो इन दोनों लाइंस को कंटेन किए हुए. अगर आप ध्यान से देखें 3, 4, 2, समझो जरा इस बात को. डायरेक्शन रेशियो 3, 4, 2, डायरेक्शन रेशियो 4, 2, 3 पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं है दोनों लाइंस. लेकिन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस, दैट मीन्स दोज टू लाइंस आर क्लियरली कोप्लेनर लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोप्लेनर लाइंस हैं. And yes, equation of plane containing those two lines
कैन बी डायरेक्टली रिटर्न एज, कहाँ लोड है हमें, एक्स वाई जेड 3 4 2 4 2 3, दैट डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, बात खत्म। दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सॉल्व भी कर देते हैं। 12 माइनस 4 8x, 9 माइनस 8 y, 6 माइनस 16 माइनस 10z इक्वल्स टू 0। चेक करिएगा प्लीज। दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको जो प्लेन रिक्वायर्ड है वो इस लाइन को कंटेन कर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। बनेगा, कहां दिक्कत है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस, या इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, इस लाइन पर पॉइंट क्या है, 0 0 0। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। a इंटू एक्स माइनस 0 प्लस b इंटू वाई माइनस 0 प्लस c इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0। प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। अब समझाना की आवश्यकता नहीं लगेगी। 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू 0। और ये प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। 2 3 4 सॉरी ए बी सी प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज, 8 माइनस 1 माइनस 10 प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज। आई थिंक सभी लोग बहुत कंफर्टेबल हैं। ऊपर से तो नहीं जा रहा ना कुछ भी। 8a माइनस b माइनस 10c इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, राइट, इट विल बी माइनस 30 प्लस 4 माइनस 26 32 माइनस 32 52। चेक कर लीजिएगा प्लीज। दैट्स माइनस 2 माइनस 24 माइनस 26। बहुत अच्छी बात है। प्लेन के जो डायरेक्शन रेशो, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज, इसको मैं लिख सकता हूं -1 2 माइनस 1। The equation of plane can be written as -1 times x plus 2 times y minus 1 times z is equals to 0. That is the equation of plane. ठीक है, तो कितनी आसानी से बना लिया। अदरवाइज तो 4 बार क्वेश्चन पढ़ ही रहे हैं, पता नहीं कौन सा प्लेन किसके पैरेलल किसको कंटेन किया हुआ, सब अजीब सा लगता है ना। और बड़ी आसानी से बन गया। In the year 2008, a complete 3 questions set of 3 questions were asked, in which 2 lines are given in the symmetric form. X plus 1 by 3 equals to y plus 2 by 1 equal to z plus 1 by 2. That's the line 1. Line 2 is given again in the symmetric form. X minus 2 by 1 equals to y plus 2 divided by 2 equal to z minus 3 divided by 3. The first question is about the shortest distance between the two lines. दोनों लाइंस के बीच में shortest distance, L1 और L2 के बीच में shortest distance। बहुत कंफर्टेबल है हम shortest distance में तो, right? L1 L2, the straight line is clearly passing through the point -1, -2, -1 and having direction ratios as 3 1 2. Straight line is passing through that point 2, -2, 3. Having direction ratios as 1 2 3. ये बात तय है कि जो shortest distance होगी that is always along the common perpendicular to both the lines.
and you are going to take the projection of, let's say that point is A, this point is B, you are going to take the projection of AB on the common perpendicular. तो short distance हम जानते हैं that will be the projection of AB on PQ या along PQ. PQ का डायरेक्शन कोसाइंस आपने कंसिडर किया है LMN, ठीक है. तो PQ परपेंडिकुलर है फर्स्ट लाइन के L1 के और PQ परपेंडिकुलर है सेकेंड लाइन L2 के, कोई दिक्कत नहीं है. दैट्स क्लियरली गोइंग टू बी 3L प्लस M प्लस 2N इक्वल्स टू 0. L प्लस 2M प्लस 3N इक्वल्स टू 0. काफी कंफर्टेबल है आप इस, तो कोई दिक्कत नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इज देयर, बट यू आर गोइंग टू गेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, बट टू टेक द प्रोजेक्शन डायरेक्शन कोसाइंस आर नीडेड. Can you tell me the direction ratios? -1, -7, -5, 5. Okay, plus 5. So -1, -7, 5 are nothing but the direction ratios of that line which is perpendicular to both the lines. But मेरी रिक्वायरमेंट है डायरेक्शन कोसाइंस, तो ठीक है, हो जाएगा. x2 minus x1 modulus of 2 minus of -1 into -1 by root 49 plus 1 50 plus 25 75 root 75 plus -2 and minus of -2 0 हो रहा है, तो होने दीजिए, अच्छी बात है. प्लस 3 minus of -1 4 into 5 by root 75. प्रोजेक्शन है, मॉडुलस में लिख रहा हूं मैं. इट विल बिकम 2 plus 1 3 माइनस ऑफ 3 17 by root 75. ठीक है क्या? 17 by root 75 and that is nothing but the shortest distance. हाँ जी, हाँ, रूट 75 को लिख सकते हैं हम 5 root 3, नो डाउट. दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन. अब देखो, देयर वाज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर्स आल्सो. कितना सिंपल सी बात है. 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड द क्वेश्चन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2. सुनिएगा ध्यान से, ऑप्शंस भी आपके सामने है. द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2. L1 और L2 के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है उसकी बात कर रहा है. वेक्टर्स हमें डिस्कस करना है, बट यस वी कैन अंडरस्टैंड L1 L2 के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर. तो भैया L1 L2 के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? तो PQ इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2. L1 और L2 के परपेंडिकुलर तो PQ है, बिल्कुल है. तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है PQ के? -1, -7, 5. You want unit vector which is perpendicular to the both lines L1 and L2. ज्यादा लोड नहीं है. -1i -7j the vector है ना, which is perpendicular to both the lines plus 5k. And since you want unit vector root over a1i plus a2j plus a3k divided by root over a1 square plus a2 square plus a3 square, it is nothing but root 75. That will be the unit vector. कहाँ दिक्कत है? And the third question based on the same passage, the distance सुनना जरा. The distance of the point 1 1 1, ठीक है, पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन. तो अच्छा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात होना चाहिए. The distance of the point 1 1 1 from the plane passing through points -1 -2 -1 and whose normal is perpendicular to both the lines. अब फिर सुनना, सबसे पहली बात, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 -2 -1. एक्चुअल में ये -1 -2 -1 इज नथिंग बट द पॉइंट ऑन दिस लाइन ऑल्सो, है ना, ठीक है. So a into x plus 1 equation of plane plus b into y plus 2 plus c into z plus 1 is equals to 0. That is the equation of plane.
ठीक है, अब वो बोलता है कि इस प्लेन का नॉर्मल whose normal is perpendicular to both L1 and L2। अब सुनना, L1 और L2 के परपेंडिकुलर है नॉर्मल। अच्छा, L1 और L2 के परपेंडिकुलर अगर नॉर्मल है तो PQ के पैरेलल हो गया यार भाई। PQ भी तो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। बोलता है नॉर्मल भी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है नॉर्मल इज पैरेलल टू PQ। वैभव भाई समझ रहे हैं, नॉर्मल इज पैरेलल टू PQ, नॉर्मल PQ के पैरेलल है, और नॉर्मल PQ के पैरेलल है तो PQ के डायरेक्शन रेशियोज आपको प्राप्त हो चुके हैं, -1 -7 5। तो ठीक है यार, PQ और नॉर्मल दोनों पैरेलल हैं, तो आई कैन डेफिनेटली राइट A upon -1 इक्वल्स टू B upon -7 इज इक्वल्स टू C/5। ठीक, -1 टाइम्स x प्लस 1, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके सामने। दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई आपको। अब बोलता है वो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 1 1। भैया अगर प्लेन की इक्वेशन आ गई तो 1 1 1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में दिक्कत है क्या? मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, again in the year 2010 the question was asked that if the distance between the plane ax minus 2y plus z equals to d, ax minus 2y plus z equals to d, distance between the plane ax minus 2y plus z equals to d and the plane containing the lines, distance between this plane and the plane containing the lines x minus 1 by 2 equals to y minus 2 by 3 equals to z minus 3 by 4 and x minus 2 by 3 equal to y minus 3 by 4 equal to z minus 4 by 5 is root 6. Then modulus of d will be equals to, देखो distance of this plane ax minus 2y plus z equals to d, ठीक है, distance between the plane, this plane and the plane containing these two lines is root 6. Again, plane containing these two lines, in the same year the same type of questions were asked. The equation of plane containing these two lines, plane की equation जो इन दोनों lines को contain कर रहा है, co-planar lines से सीधी सी बात है, और equation of plane containing those two lines can be clearly written as x minus 1 y minus 2 z minus 3 2 3 4 3 4 5, that determinant is equal to 0. Yes, anybody has solved this? Determinant आपको solve करना होगा, you will be getting the equation of plane then. Yes, you will have to tell me the equation. I am not going to solve the determinant. X minus 2y plus z equals to 0. X minus 2y plus z equals to 0. चेक करिएगा सभी लोग, all of you are getting after solving this determinant x minus 2y plus z equals to 0. एक और important point है जो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, equation of plane ax minus 2y plus z equals to d and the equation of plane which you are getting x minus 2y plus z equals to 0, और जो information है the distance between the planes is root 6, प्लेन के बीच में डिस्टेंस रूट 6 है। तो आपको देखकर समझना होगा, एक प्लेन है x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू डी, दूसरा प्लेन है x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये बात तय है, ये दोनों प्लेन्स पैरेलल प्लेन्स होना चाहिए, तभी आप डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स की बात कर पाओगे। और फिर से अगर आप ऑब्जर्व करो, कोएफिशिएंट ऑफ y हियर -2, हियर इट्स -2, कोएफिशिएंट ऑफ z 1, इट्स 1, so a must be 1, a की वैल्यू भी 1 होना चाहिए ना, a must be
1। और यहां पर हम बात कर लेंगे डिस्टेंस बिटवीन द √6 इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। कैसे प्लेन्स? पैरेलल प्लेन्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस between parallel planes can be written as modulus of d minus 0 upon root over 1 plus 4 plus 1, and that distance between the parallel planes is given in the question as √6. The modulus of d is √6 into √6, 6, and that is the final result. ठीक है? Yes, those two, जब distance between the planes अगर कहा गया तो those two planes must be parallel planes, तय बात है। ठीक? Now the question of AIEEE in the year 2005 it was asked, simple सवाल, angle between the lines। छोटे छोटे क्वेश्चन देख रहे हैं हम, कुछ जेई के क्वेश्चन देख रहे हैं। एंगल बिटवीन द लाइंस 2x इक्वल्स टू, हाँ लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि कम से कम ऐसे सवाल में एरर नहीं हो। एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस, तो लाइंस के बीच में अगर एंगल पूछा गया तो सबसे पहला काम करना भैया लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के रख लेना। That will be x upon 1 by 2, y upon 1 by 3, z upon minus 1, x upon 1 by 6, y upon minus 1, z upon minus of 1 by 4। ये दो लाइन से स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए आप। 1 by 2, 1 by 3 minus 1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन, and 1 by 6 minus 1 by 4 is the direction ratio of the second line। ठीक है यार। cos theta, angle between the two lines, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root over a1 square plus b1 square plus c1 square root over a2 square plus b2 square plus c2 square। simple formula is there। ठीक, anybody has solved this? अच्छा, जीरो ही हो रहा, न्यूमरेटर इटसेल्फ इज कमिंग। ओ मैंने फालतू मेहनत कर ली यार, याद थोड़ी ना रख के आता हूँ मैं, मुझे भी याद थोड़ी ना। ठीक है, ट्राई कर रहे थे। cos थीटा अगर 0 आ रहा है अच्छी बात है, थीटा पाई बाय 2। एक और बड़ा डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा। और यहां पर कहा गया है दैट द लाइंस और कॉमन सा सवाल है इनफैक्ट, x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, z इक्वल टू सी वाई प्लस डी। इनफैक्ट ये दो प्लेन्स हैं ये, एंड x इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश and z is equals to c dash y plus d dash। उसने कहा ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एंड देन रिलेशन इन ए बी सी जैसा भी है। if these two lines are perpendicular lines, ये दो लाइंस हैं, इनफैक्ट ये दो प्लेन्स हैं। these are the two planes which represent a line and these are the two planes which represent a line। सीधी सी बात है। अब प्लेन को लाइन के फॉर्म में लाना है या जनरल, एक्चुअली इट इज जनरल फॉर्म एंड यू हैव टू रिड्यूस इन द सिमेट्रिक फॉर्म। जनरल फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म में लाना है। बोले सर करते हैं कोशिश, लेकिन जहां काम डायरेक्ट हो जाए तो डायरेक्ट करिएगा यार, क्या दिक्कत है।
बाय ऑब्जर्वेशन अगर आप बना पा रहे हैं तो बेस्ट है, देखिएगा कैसे बना पा रहे हैं। देखो x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाई और z माइनस डी इज इक्वल टू सी वाई। इसको जब आप अरेंज करें तो आप जरूर कह सकते हैं x माइनस बी डिवाइड बाय ए इक्वल टू वाई बाय 1 इक्वल टू z माइनस डी बाय सी। चेक कर लीजिएगा प्लीज, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द सिमेट्रिक फॉर्म। डायरेक्टली आ गया exactly in the same manner. X minus b dash upon a dash is equals to y by 1 is equals to z minus d dash upon c dash. ठीक, so definitely a 1 c are nothing but the direction ratios of the first line, a dash 1 c dash are nothing but the direction ratios of the second line, and it has been given that both the lines are perpendicular lines, so a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0. डायरेक्टली अरेंज कर लिया हमने, a इंटू ए डैश प्लस 1 प्लस c इंटू सी डैश इज इक्वल टू 0. a डैश प्लस सी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0, ये रिजल्ट होगा और क्या है. ठीक, जनरल फॉर्म सिमेट्रिक वो बोले सर अपन डायरेक्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना, डायरेक्टली वी आर गेटिंग दैट. Now look for an interesting question based on the shortest distance between the two lines. Now the question is, you have to find out the shortest distance between the z axis and the straight line x plus y plus 2z equals to 3 and 2x plus 3y plus 4z equals to 4. दो प्लेन से एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं, और दो प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म में. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि एज फार एज z एक्सिस इज कंसर्न, तो z एक्सिस की इक्वेशन तो आप लिख सकते हैं. z एक्सिस कैन बी रिटन एज x माइनस 0 बाय 0 इक्वल्स टू y माइनस 0 बाय 0 इक्वल्स टू z माइनस 0 बाय 1, और यू कैन टेक एनी ऑफ द पॉइंट ऑन द z एक्सिस, वो कोई इशू नहीं है. और परेशान होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर मान लीजिए जनरल फॉर्म में आपको लाइन गिवन है, ये दो प्लेन्स अगर एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बहुत कंफर्टेबल हैं जहां पर आप जनरल फॉर्म से कन्वर्ट कर सकते हैं इन द सिमेट्रिक फॉर्म. कहां दिक्कत है? मेरे ख्याल से तो बहुत कंफर्टेबल हैं आप जनरल फॉर्म से सिमेट्रिक फॉर्म में लाने के लिए. तो दो लाइंस अगर सिमेट्रिक फॉर्म में आ जाएगी तो आप बहुत आसानी से शॉर्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट अप्लाई कर पाओगे. एक अप्रोच तो ये हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं, सीधी सी बात है. कहीं भी फंस जाओ, आपको जनरल फॉर्म से रिलेटेड आप कंफर्टेबल नहीं है तो जस्ट कम इन द सिमेट्रिक फॉर्म. कहाँ दिक्कत है? l plus m plus 2n equals to 0 and 2l plus 3m plus 4n equals to 0. You will be getting the direction ratios using cross multiplication and take the intersection with any of the plane. You will be getting one of the point, और ये line symmetric form में. But I am looking for one more approach. ये दो प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. So मैं कहता हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन, containing line of intersection of two planes. Containing line of intersection of two planes. That will be P1 plus lambda P2 equals to 0. ठीक है, आप जानते हैं, बोले सर ठीक है इसमें कोई खास बात नहीं, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन लाइन, उसी लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में निकाल लेते हैं हम. ठीक है, हम नहीं निकाल रहे हैं. दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, दैट कैन बी रिटन एज P1 plus lambda P2 equals to 0. डायरेक्टली अरेंज करके लिखूं, शायद परेशानी नहीं होना चाहिए आपको. चेक करिएगा जरा, ठीक है ना. P1 plus lambda P2 equals to 0. 1 plus 2 lambda into x plus 1 plus 3 lambda into y plus 2 plus 4 lambda into z minus 3 minus of 4 lambda. बोले सर आप क्या करना चाह रहे हैं? देखो अब ये समझने वाली बात है.
दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल करता है, और हमने लिखा उस लाइन को कंटेन किए हुए प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। लेट्स से दैट इज द प्लेन, दैट्स द प्लेन विच इज कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। ये P1 प्लस लेमडा P2 है जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन किए। प्लेन तो एक्चुअल में लेमडा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, देर मैं दूसरी अप्रोच से समझा रहा हूँ आपको। तो प्लेन तो कई सारे प्लेन हो सकते हैं जो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करे, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग प्लेन होंगे। लेकिन सिंस यू आर इंटरेस्टेड इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, z एक्सिस और लाइन में के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो प्लेन तो कई सारे हो सकते हैं जो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करे हुए, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यह आवश्यक होगा, क्या आवश्यक होगा? द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन मस्ट बी पैरेलल टू द z एक्सिस। क्या बोलते हो, हाँ या ना? ठीक है, मैंने यहां पर जनरल फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है और मैं एक दूसरी अप्रोच पे काम कर रहा हूं। So that P1 plus lambda P2 equals to 0, that equation of plane containing the line of intersection of the two planes for shortest distance must be parallel to that line. Plane और line parallel होना चाहिए, तब shortest distance की बात हो पाएगी, है ना? So that P1 plus lambda P2, that plane must be parallel to z axis for shortest distance between the two lines. तो दो प्लेन, लाइन सुनना, लाइन दैट्स द लाइन, दैट्स द प्लेन। अगर ये लाइन और प्लेन पैरेलल हैं तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। बहुत परेशानी नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। एक बार आपको समझ में आ जाएगी बात तो आप बहुत शॉर्ट में कर लोगे उसको। राइट, लेमडा इज कमिंग माइनस ऑफ 1/2। आ रहा है क्या समझ में आपको? ये वैल्यू ऑफ लेमडा आ गई। लेमडा की वैल्यू अगर मिल जाएगी, है ना, वैल्यू ऑफ लेमडा जब आपको मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। बाय द वे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ रही है यहाँ पर? 2 + 4 लेमडा 0 हो रहा है, टर्म तो नहीं रहेगी, ठीक है। यस, कैन यू टेल मी द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लीज? लेमडा, लेमडा की वैल्यू माइनस ऑफ 1/2, 1 - 1 0 into x, this term will also be equals to 0. So that equation of plane is coming as equation of plane. Yes, after solving this, ये टर्म 0 होने वाली, ये टर्म 0 हो जाएगी। लेमडा की वैल्यू माइनस ऑफ 1/2 माइनस 3/2 माइनस ऑफ y/2, राइट, माइनस 3 प्लस 4/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चेक करिएगा प्लीज। माइनस y, इट विल बी -1 minus 2 equals to 0, or you can say y plus 2 equals to 0 is the equation of plane. y plus 2 equals to 0, ये प्लेन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, कैसा प्लेन है? कैन यू कमेंट ऑन दैट? हम तो काफी सारी बातें सीखना चाहेंगे, तो ठीक बात है। ये प्लेन कैसा है? y plus 2 equals to 0 प्लेन है, ठीक है। देखो, y equal to 0 is the equation of which plane? y equal to 0 is the equation of xz plane. तीन प्लेन्स होते हैं, xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन। तो zx प्लेन की इक्वेशन होती है y equal to 0, और zx प्लेन के पैरेलल प्लेन अगर होगा, zx प्लेन के पैरेलल प्लेन होगा y equals to some constant। तो ये प्लेन जो आ रहा है एक्चुअली इट इज कमिंग पैरेलल टू zx प्लेन। बोला सर ठीक है, चलिए प्लेन तक पहुंचे, अब आगे क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है।
हमने कहा कि भैया ये लाइन और ये प्लेन पैरेलल होंगे, प्लेन की इक्वेशन आ गई, लाइन की इक्वेशन भी अवेलेबल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। टेक एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, टेक एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, और उस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर, दैट विल बी नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोले सर कौन सा पॉइंट लें, तो ले लो भैया 0 0 0। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन is shortest distance, it will be 0 plus 2 upon root 1, that will be, that is going to be the shortest। देखो दो बातें हैं यहाँ पर, आपको लग रहा होगा सर ये तो प्रीवियस अप्रोच से लंबा हो गया, ऐसा नहीं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पूरी बात एक्सप्लेन करी। सबसे पहली बात, जनरल फॉर्म को मैंने यहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स को लिखा P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू, ये भी ठीक है। हमने कहा भैया ये शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो प्लेन और लाइन पैरेलल होना चाहिए, प्लेन और लाइन पैरेलल होगा, इसका मतलब प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 का यूज करते हुए आपने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करी, लेमडा की वैल्यू से प्लेन की इक्वेशन आ गई, और प्लेन की इक्वेशन आ गई आपके पास में, तो टेक एनी पॉइंट ऑन द इक्वेशन ऑफ z एक्सिस या इक्वेशन ऑफ लाइन जो भी गिवन है आपको, किसी भी पॉइंट से प्लेन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लीजिए, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही आएगा। बट ये वो अप्रोच है जहां पर आपने जनरल फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। वन मोर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, shortest distance between the line x minus 2 by 2 equals to y plus 1 by 3 equals to z by 4, and the second line which is given in the general form, two planes are representing that line, 2x plus 3y minus 5z minus 6 equals to 0 and 3x minus 2y minus z plus 3 equals to 0. One of the approach could be जनरल फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें एंड देन फाइंड आउट द शॉर्ट डिस्टेंस। बट एक और अप्रोच जो अभी अभी रिसेंटली आपने सीखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0, अप्लाई किया आपने, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 3 लेमडा इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 लेमडा इंटू वाई प्लस माइनस 5 माइनस लेमडा इंटू जेड प्लस माइनस 6 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल्स टू 0, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0 मस्ट बी पैरेलल टू दैट लाइन। प्लेन लाइन के पैरेलल होना चाहिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और प्लेन लाइन के पैरेलल होना चाहिए तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। सो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 3 4, डायरेक्शन रेशियोज के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज भी आपको कंसेप्ट अगर पता लग जाता है ना, तो वो क्वेश्चंस रिलेटिवली बहुत आसानी से बनने लगता है। Yes, you will have to give me the value of lambda from this. Minus minus 7 by 4. Okay. All of you are getting that? माइनस 7 बाई 4 अगर आपको वैल्यू मिलती है माइनस 7 बाई 4, हाँ इतनी मेहनत जरूर करना होगी आपको। यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेमडा की वैल्यू को पुट करना होगा और आपको प्लेन की इक्वेशन लिखना होगी, है ना। लेमडा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 बाई 4, प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 एंड गिव मी द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रॉपरली। अरेंज करके बताइए जरा, बता दीजिए। माइनस 13 प्लस 26y माइनस 13z चेक कर लें, ठीक है। प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड डू वेरीफाई दैट इक्वेशन। राइट, चेक कर लीजिए।
गॉट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन मिल गई आपको, बट वी वांट शॉर्ट डिस्टेंस, क्या करा जाए, टेक एनी पॉइंट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन, और उस पॉइंट से भाई जब ये बात तय हो गई, ये बात क्लियर हो गई आपको कि लाइन, दैट लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, प्लेन आपका निकल आया, तो लाइन पर जो भी पॉइंट है, पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। बोले सर लाइन पे पॉइंट क्या लें, क्यों ज्यादा सोचना थोड़े ना है, द पॉइंट इज अवेलेबल टू यू 2, -1, 0, दैट्स द पॉइंट ऑन द लाइन। So short distance is nothing but length of perpendicular, बड़ी अच्छी अप्रोच है भी, length of perpendicular from 2, -1, 0 on the plane, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना कर सकते हैं हम, x - 2y + z is equals to minus of 45/13, 2 - 1 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिख दीजिएगा, ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c², दैट्स नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो एक बार जब कंसेप्ट क्लियर होता तो लगता नहीं यार ये ज्यादा आसान है, क्योंकि अदरवाइज आपको पहले जनरल फॉर्म से सिमेट्रिक में लेके आओ, और सिमेट्रिक फॉर्म में लाने के बाद में देन टेक द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम तो उसमें भी लगेगा। यहां पर जनरल को सिमेट्रिक में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू 2, 7, -5 is drawn to intersect the lines x - 5/3 equal to y - 7/-1 equal to z + 2/1. So line direction cosines proportional to 2, 7, -5, that means direction ratios of that line is given and is drawn to intersect the two lines, x + 3 divided by -3 equals to y - 3 divided by 2 equal to z - 6/4। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है, वो जो लाइन ड्रॉ की है आपने वो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को जो सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है उसे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या रिक्वायर्ड है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर पॉइंट्स आप पता लगा लोगे तो डेफिनेटली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके एंड द लेंथ इंटरसेप्टेड ऑन इट, तो पॉइंट्स अगर आपने निकाल लिए तो लेंथ भी आ जाएगी। एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन, तीनों बातें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड, देखो एक सीधी सी बात है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज रिक्वायर्ड एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज रिक्वायर्ड। अगर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए तो बाकी दोनों कामों में कोई दम नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आ जाएगा, लाइन के डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी दे के रखे हैं, पॉइंट मिला एक तो इक्वेशन आ जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका टारगेट है कुल मिला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट किया जाए। देखिएगा वो तो एक्चुअल फिगर नहीं होगा ये, लेकिन दो लाइंस आपको गिवन है, लेट्स से इसे L1 से डिनोट कर रहा हूं मैं और इसे L2 से डिनोट कर रहा हूं मैं, ये दो लाइंस हैं और देयर इज अ थर्ड लाइन, लेट्स से इट इज L1, दिस इज L2 एंड देयर इज अ थर्ड लाइन एंड दैट थर्ड लाइन इंटरसेक्ट्स, ये एक्चुअल फिगर नहीं होगा, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात है, इसलिए केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थर्ड लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है L1 और L2 को P और Q पॉइंट्स के ऊपर, और इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू दिया है, दैट मींस डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन टू यू एज 2, 7, -5, 2, 7, -5 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है आपको, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन PQ रिक्वायर्ड है, P एज वेल एज Q रिक्वायर्ड है, PQ की लेंथ रिक्वायर्ड है और एज वेल एज इक्वेशन ऑफ PQ इज रिक्वायर्ड। आपको क्या लगता है क्या किया जाए? Take this equation equals to R1 and take this equation equals to R2 and find out the general point on that straight line। लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लीजिए, है ना। तो P पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो आई कैन राइट देयर 3R1 + 5 -R1 + 7 and R1 - 2। P point in general form in terms of R1, tick। Q point, that Q point is -3R2
-3, 2r2 plus 3 and 4r2 plus 6, that is point Q point. ठीक है, P और Q दोनों अगर आपको अवेलेबल हैं तो PQ के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z. डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. ठीक, these are nothing but the direction ratios of that line. लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए, PQ के डायरेक्शन रेशियोज हैं. लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में भी गिवन है कि 2, 7 minus 5 आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन. ये भी डायरेक्शन रेशियो मिले और डायरेक्शन रेशियो गिवन भी है आपको. ठीक है ना. तो आई कैन डेफिनेटली राइट इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम गोइंग टू राइट -3r2 minus 3r1 minus 8 2 is equals to 2r2 plus r1 minus 4 divide by 7 is equals to 4r2 minus r1 plus 8 divide by minus 5. ये PQ का डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियोज गिवन है आपको. प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर्स. टेक एनी टू पेयर, कोई भी दो पेयर लीजिए आप, लेट्स से फर्स्ट एंड सेकंड या फर्स्ट एंड थर्ड, व्हाटएवर यू लाइक. ठीक, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड को ले लें. R1 R2 के टर्म्स में दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, जरूर होंगी. सॉल्व तो करना पड़ेगा. If you take this pair, you will be getting a linear equation in terms of R1 and R2. If you take first, third, you will be getting a linear equation in terms of R1 and R2. दो linear equations अगर available हैं तो solve करने पे you will be getting the values of R1 as well as R2. मिलेगा. R1 R2 की वैल्यू मिली तो बात खत्म हो जाएगी. R1 R2 की वैल्यू मिलते ही P मिलेगा और as well as Q मिलेगा. Point of intersection is required. P और Q मिलते ही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते ही लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मिल जाएगा आपको. और जहां तक इक्वेशन ऑफ PQ का सवाल है, एक पॉइंट भी काफी है क्योंकि लाइन का डायरेक्शन रेशियोज तो 2, 7 minus 5 ऑलरेडी गिवन है आपको. आप सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर पाएंगे बशर्ते आप R1 और R2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे. तो प्लीज सॉल्व दीज इक्वेशंस. R1 R2 में दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ R1 एज वेल एज R2. So when you solve these two equations, you are going to get the two linear equations in terms of R1 and R2. You will be getting the value of R1 as -1 and value of R2 as -1. R1 R2 की values अगर -1 आ जाती है, you will be getting the P point as well as Q point. P और Q point मिल जाएंगे आपको. P point is coming as, all of you are getting -1. Still solving. आ रहा है -1. Okay. So -1, so it will become -3 plus 5, 2, 1 plus 7, 8, -1 minus 2 minus 3, and Q point is +3 minus 3, 0, 1 and 2. These are the 2 points. Distance formula apply करिएगा, you will be getting the distance. Can you tell me the distance here? Distance formula between P and Q, length of intercept is required. PQ. Fast. 4 plus 7 square 49 plus 5 square 25 root 78. Perfect. Root 78 is the length of intercept. And the third one, equation of PQ. अरे equation of PQ की क्या बात करना है, एक पॉइंट काफी है. 2, 8, -3 अगर मिल गया आपको तो equation of PQ x minus 2 y minus 8 and z plus 3
लाइन के डी आर तो ऑलरेडी हैं आपके पास 2 7 -5, सारी इंफॉर्मेशन आ गई और बेसिक कंसेप्ट के ऊपर काम किया यार हमने, सीधी सी बात है। PQ इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो PQ रिक्वायर्ड है तो हमने जनरल पॉइंट P पॉइंट लिया हमने R1 इन टर्म्स ऑफ R1 ऑन L1, Q पॉइंट लिया इन टर्म्स ऑफ R2 ऑन लाइन L2। डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट किए PQ के, डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल नंबर है, प्रोपोर्शनल नंबर यूज किया हमने, इक्वेशंस दो लीनियर इक्वेशंस R1 R2 के टर्म्स में फॉर्म करी और R1 R2 की वैल्यूज आ गई और सारी इन्फॉर्मेशन। काफी अच्छा सवाल।